Alright. So, Walaikum Salam, Khadija Wajid, Walaikum Salam, Sakina, and thank you everyone for your kind confirmation. And today, inshallah, we begin a new chapter of our life of physics. Anyways, physics is life, so no problem. Acha, important discussion is that work energy power is a very small chapter. खत्म करने वाले एक लेक्चर में भी खत्म कर सकते हैं, बट मेरे को फिर भी 2-3 लेक्चर लग जाएंगे, because I would really want to go into the depth of this chapter as much as I can, and the core objective of teaching this chapter is not to just ensure that you remember formulas and you just get able to get the answer. Rather, it's equally imperative that you develop that ability to comprehend answers. Means when you do a calculation and you get an answer, you should know what this answer means. And to reach that level, you need to, not only quantitatively understand this chapter, but you need to also qualitatively understand this chapter, philosophically understand this chapter. So we all know what is work. As far as the equation of work done is concerned, we have discussed this, we have studied it back in O levels as well. Work done by a force F is defined as the product of force and distance covered in the direction of the force. तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे और वो उस फोर्स की दिशा में कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करे, so you simply just multiply the force and the displacement in the direction of the force to get the work done. So work done is the product of force and distance covered in the direction of the force. डिस्प्लेसमेंट भी लिख दो, कोई मसले की बात नहीं. जब डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स लिख दिया तो उसका मतलब वो अंडरस्टूड सी बात है कि वो वेक्टर हो चुका है, बिकॉज़ यू हैव स्पेसिफाइड अ डायरेक्शन. एक चीज की तब आपको आदत हो गई होगी, लेट्स से अगर फोर्स इज नॉट पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट, rather force is at some angle to the displacement, so you can resolve this force into its components. So since it is making an angle of theta with the horizontal, so the horizontal component is going to be f cos theta and the vertical component is going to be equal to f sin theta. And I'm pretty sure you all understand that we should be using f cos theta because we need the component of the force which is parallel to the displacement. So W equal F cos theta into displacement, or Fs cos theta. Work is a scalar quantity. Work is scalar quantity है. इसकी कोई specific direction नहीं होती. And it is measured in Newton meters. So force is measured in newtons, displacement is measured in meters. So this is Newton meters. और एक न्यूटन मीटर को एक जूल भी कह सकते हैं आप. ये है आम जिंदगी. कुछ चीजें और भी हैं जो आपने शायद वो लेवल्स में भी पढ़ी हो. वो ये कि if an object is displaced horizontally and at the same time there is a force F acting on it vertically, then no work is done. आसान भाषा में जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं, वर्क डन नहीं हो सकता. You got to have some displacement in the direction of the force. आइडियल तो ये कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम ही डायरेक्शन में हो, या एटलीस्ट अगर किसी एंगल पे हो तो चलो आपकी फोर्स का कोई कंपोनेंट ही हो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो. बट अगर सिचुएशन ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, then the work done has to be zero. Work done due to a perpendicular force is always zero. मैं आपके आगे एक बेसिक से सिचुएशन डेवलप करता हूं. एक बॉक्स है जो किसी सरफेस पे प्रेजेंट है and there are a total of 4 forces acting on it. Its weight, normal contact force, a forward push of 100 Newton and a friction also of 100 Newton in the opposite direction. Now right now the forces are nicely balanced
the resultant force is 0. Now, because the resultant force is 0 and the object is in equilibrium, there are two possibilities according to first law of motion. Either the object is at rest or the object is just moving with a constant velocity. In this case, I'm assuming that my object is moving with a constant velocity, or it has covered a displacement of 50 meters to the right. Okay. Now, work done by the force F is, force is 100 and displacement is 50. So 100 into 50 is 5,000 joules. Work done by friction is minus 100 into 50. So that's minus 5,000 joules. One very important thing to understand and remember is that when the force and the displacement are in opposite direction, the work done is going to be negative. Yes. And this is extremely important to understand कि आखिर negative work का मतलब क्या होता है. देखिए, अच्छा, आप में से काफी लोग hand raise करें. I'll be taking your question as well once I'm done with my discussion. देखिए, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है. Yes. वर्क जब नेगेटिव होगा ना, तो अनलाइक वेक्टर क्या बोलो, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिर नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होगा, बिकॉज वर्क इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. वर्क स्केलर है. देखिए, स्केलर क्वांटिटी का नेगेटिव होने का आमतौर पर सिंपली मतलब ये होता है कि वो चीज लूज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, आपके अकाउंट में मैंने 100 रुपए रखे और 50 रुपए निकाल लिया, तो व्हेन आई टेक आउट 50 रुपीज, तो आप सिंपली अपनी बैलेंस शीट में लिख देंगे -50. अब ये नेगेटिव साइन का मतलब कोई वेक्टर नहीं है ऑपोजिट डायरेक्शन में. सिंपली भाई कोई चीज ऐड हो रही है तो आप उसको प्लस कर दोगे, कोई चीज सिस्टम से एलिमिनेट हो रही है तो आप उसको माइनस कर दोगे. उसका कोई वेक्टर से लेना देना नहीं है. यहां पर व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इस बॉक्स पर आपने 100 न्यूटन की फोर्स लगाई एंड इट कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर्स. आपने 5000 जूल का वर्क किया. ओके, अगर लेट्स से ये फोर्स नहीं होती, अगर फ्रिक्शन होती ही नहीं और सिर्फ आपकी 100 न्यूटन की फोर्स होती और ये 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करता, तो मेरे ख्याल से आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करता, बल्कि द ऑब्जेक्ट वुड हैव एक्सेलरेटेड, बिकॉज़ कोई ओपोजिंग फोर्स नहीं है ना, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 तो नहीं है. आपकी 100 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स होती, योर ऑब्जेक्ट वुड हैव एक्सेलरेटेड. उसकी स्पीड बढ़ती, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती. आप जब वर्क करते हैं तो वर्क एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वर्क इस बॉक्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती, और इतनी बढ़ती 5000 जूल. लेकिन क्योंकि एट द सेम टाइम एक 100 न्यूटन की ओपोजिंग फोर्स थी, जिसे आप फ्रिक्शन कह सकते हैं, उस ओपोजिंग फोर्स ने क्या किया, रिजल्टेंट फोर्स को 0 कर दिया. ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, डिस्पाइट के वर्क हो रहा है, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि 5000 जूल का आपने वर्क डन किया और फ्रिक्शन ने वो 5000 जूल लूज कर दिए बाय हीटिंग. फ्रिक्शन आमतौर पर क्या करती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है. और आपने जो 5000 जूल का वर्क किया था ना, वो पूरा का पूरा 5000 हीटिंग में जाया हो गया. इसीलिए सिस्टम ने ना काइनेटिक एनर्जी गेन की, ना पोटेंशियल एनर्जी गेन किया. तो टोटल एनर्जी चेंज 0 का आया. मतलब जितना आपने वर्क किया उतनी एनर्जी उसने लूज कर दी. अच्छा, अब बहुत से लोग एक सवाल करते हैं कि सर, आपने पहले पॉजिटिव वर्क निकाला, फिर आपने नेगेटिव वर्क निकाला, आप डायरेक्ट रिजल्टेंट फोर्स से वर्क डन निकाल लेते हैं, आंसर 0 ही आता. दिस इज वेरी रॉन्ग अप्रोच. देखिए, ठीक है, एनर्जी का चेंज नहीं आया, बट आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे वर्क नहीं हुआ है. यानी आप सोचें, एक बंदा है, वो एक बॉक्स पर
100 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है 50 मीटर तक, ठीक है, 50 मीटर मूव करने के बाद आप उससे कहते हो यार आपने कोई काम ही नहीं किया, पत्थर उठा के आपके सर पे मार देगा, पागल हो गया है क्या? 50 मीटर से 50 मीटर छोटा डिस्टेंस होता है, 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं मैं, कह रहा हूं कोई वर्क डन नहीं हुआ। आप बोलो नहीं यार असल में काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं बढ़ी, हाँ भाई उसने वर्क किया, लेकिन एट द सेम टाइम वो वर्क जाया हो गया ना। तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि पहले आपने 5000 जूल का वर्क किया, फिर वो 5000 जूल का वर्क जब सिस्टम पे हुआ, इस बॉक्स पर हुआ, तो वो एनर्जी क्या हो गई, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, यानी हीटिंग प्रोड्यूस हो गई और वो जाया हो गया। ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसकी बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है कि देखिए दो सिचुएशन है, एक इंसान है जो हडाराम की तरह घर पे पड़ा हुआ है, कमाता ही नहीं उसके अकाउंट में 0 रुपए पड़े। एक और इंसान है पूरा महीना मेहनत करता है, 1 लाख रुपए कमाता है और फिर 1 लाख रुपए खर्च करता है, उसके भी अकाउंट में 0 रुपए पड़े हुए, बट आप इन दोनों को सेम नहीं कह सकते। आप समझ लो, आप ये नहीं कह सकते हो बात, अबे बात एक ही नहीं है ना भाई, एक बंदे ने मेहनत किया था ना, उसके बाद उसको उड़ाया, उसकी मर्जी है भाई खर्च करे। आप इन दोनों सिचुएशन को सेम नहीं कर सकते हो। वर्क डन रिजल्टेंट फोर्स से नहीं निकलता, वर्क डन हमेशा अप्लाइड फोर्स से निकलती है। यू हैव टू से कि भाई आपने 5000 जूल का वर्क किया और फिर वो 5000 जूल का वर्क जाया हुआ ड्यू टू फ्रिक्शन, जिसकी वजह से हाँ टोटल एनर्जी चेंज नहीं आया, ऑब्जेक्ट उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहा, ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ी ना पोटेंशियल एनर्जी। Work done by normal contact force is equal to number of replies that you get on WhatsApp from Sir Pasha. Work done by weight is also equal to 0, क्योंकि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है। अब मुझे सिर्फ यहां तक बता दें कितने लोग हैं जो यहां तक मुझसे सहमत है। सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए सर, वही आज पढ़ा, हाँ बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा, वो रिवीजन हो जाएगी, बट आई वुड एडवाइस कि आप अटेंड करें। सर व्हाई इज वर्क डन एज स्केलर क्वांटिटी? सर अगर रिजल्टेंट वर्क डन सेम है तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा आप देखिए, सर व्हाई इज वर्क डन एज स्केलर क्वांटिटी? अभी थोड़ी देर में आपको अंदाजा होगा, लाइक वैसे तो इसकी एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, वो उसमें मैं नहीं जा रहा, वो ही डिटरमिन करती है कि एक्चुअली एक फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होगी या वेक्टर होगी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बट आप वर्क को वैसे ही बड़ा लॉजिकली समझ सकते हो। वर्क इन प्रिंसिपल इज सिंपली कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की मेजरमेंट। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, उसको आप वेक्टर कैसे बोल सकते हैं? वो वेक्टर नहीं, भले हाँ फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन वर्क डन वेक्टर नहीं है, वर्क डन स्केलर। तभी तो मैं इतना फिलोसफिकली जाके इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वरना तो मैं कह सकता था भाई ये पॉजिटिव था नेगेटिव था कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ गया, बट दिस इज नॉट हाउ दिस शुड बी ट्रीटेड। एक मिनट जी, हम ना, आई एम जस्ट टर्निंग ऑन योर माइक, यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर अगर ये स्केलर है तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेना चाहिए, तो फिर हमने नेगेटिव क्यों लिया है उसको? मुझे वो नहीं समझ आ रही। मैं वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्केलर में एक तो वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन होता है, स्केलर में ऐसा नहीं कि स्केलर नेगेटिव नहीं हो सकता, बस आपको ये समझना पड़ता है कि स्केलर में नेगेटिव साइन डायरेक्शन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होता है। स्केलर में नेगेटिव साइन का सिंपली मतलब ये है कि वो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, यानी वो चीज सिस्टम से एलिमिनेट हो रही है। तो आपने 5000 जूल का वर्क किया और 5000 जूल सिस्टम ने लूज भी कर दिए इन डूइंग वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन में वो हीटिंग प्रोड्यूस हो गया, तो आई वुड कंसीडर दैट एज द लॉस इन एनर्जी। ओके सर। समझ आ रही है बात? अच्छा जी। अच्छा खतीजा, आपने खुद पूरा एक्सप्लेन किया, फिर आप कह रहे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं देखो तुम क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्क इज गोइंग ऑन, but at the same time it's losing by friction force,
Hence kinetic energy is constant and work done is also energy. देखो तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो ना, मैं तुम्हें इसकी बेस्ट एग्जांपल दूं। आप में से अगर कोई भी गाड़ी चलाता हो, जब आप गाड़ी की टॉप स्पीड अचीव करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी 100-120 की स्पीड पर जा चुकी है, अच्छा उसके बाद आप चाह भी रहे हो ना गाड़ी की स्पीड बढ़े, आपने फुल एक्सेलरेटर दिया है, आपने फुल फोर्स लगाई हुई है, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही है। स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है? उसकी वजह यह है कि आपकी गाड़ी जब हाई स्पीड में ना तो ड्रैग अच्छा खासा उस पर ऐड कर, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी गाड़ी 2000 न्यूटन की फोर्स प्रोड्यूस कर रही है और ड्रैग भी 2000 न्यूटन का है, तो तुम्हें सिर्फ 2000 न्यूटन कंटिन्यूअसली लगाना है ताकि तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सको। तुम देख रहे हो, तुमने देखो एक्सेलेरेटर का काम क्या होता है? स्पीड बढ़ाना। तुमने फुल एक्सेलेरेटर पे पाँव रखा हुआ है, तुम कह रहे हो यार स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है? लेट्स से इमेजिन करो बिल्कुल खुला रोड है, कोई मसले की बात नहीं, स्पीड लिमिट की टेंशन नहीं है, आप स्पीड बढ़ा सकते हो। तुम सिचुएशन समझना, तुमने कंटिन्यूअसली तुमने कंटिन्यूअसली एक्सेलेरेटर पे पाँव रखा हुआ है और तुम्हारी गाड़ी का इंजन पूरी जान लगा रहा है, कंटिन्यूअसली फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, फोर्स भी लगा रहा है, लेकिन गाड़ी जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गाड़ी पे जो अपोजिंग फोर्स है ना, ड्रैग, वो इतना ज्यादा हो चुका है कि तुम्हारे इंजन की सारी एनर्जी से उस ड्रैग से फाइट करने में निकल जा रही है। अब गाड़ी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, क्या ये कहना गलत सही होगा कि आप बोलो गाड़ी कोई वर्क नहीं कर रही है? भाई क्या हो गया, गाड़ी का फुल थ्रॉटल पे इंजन चल रहा है, फुल एक्सीलरेटर पे आपने पाँव रखा हुआ है, गाड़ी दबा के इस वक्त आपका फ्यूल भी कंज्यूम कर रही है, गाड़ी गाड़ी का इंजन फॉरवर्ड फोर्स लगा के जबरदस्त वर्क कर रहा है। हाँ, आपको कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा है, ना गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ना गाड़ी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। उसकी वजह ये है कि आप जो वर्क कर रहे हो ना, वो उसी इंस्टेंट जाया हो रहा है, वो उसी इंस्टेंट सिर्फ ड्रैग से लड़ने में जाया हो रहा है। तो ये तो कहना गलत है ना कि वर्क नहीं कर रहा हूं मैं, वर्क तो आप डेफिनेटली कर रहे हो। हाँ, आपको उसका रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है, हालांकि फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। उसकी वजह सिंपली ये कि वो वर्क लूज हो रहा है एट द सेम टाइम इन फाइटिंग अगेंस्ट द ड्रैग। नतीजा क्लियर ना? अच्छा सर, सर 50 तो राइट वाली फोर्स का डिस्प्लेसमेंट है, तो फ्रिक्शन से क्यों मल्टीप्लाई किया? देखिए सकीना, इस चीज को समझ ले, कोई भी डिस्प्लेसमेंट किसी फोर्स का फिक्स नहीं होता कि ये इसी का ये सिंपली एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट ने ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी, तो मैंने दोनों फोर्स का अलग अलग वर्क डन निकाला है। तो क्योंकि ये वाली फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में थी, तो मैंने इस वर्क डन को क्या लिया? पॉजिटिव। और ये फोर्स भी इस ऑब्जेक्ट पर ही लग रही है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट भी ये ऑब्जेक्ट ही कवर कर रहा है ना, तो इसी ऑब्जेक्ट का ही वर्क डन है, लेकिन नेगेटिव है क्योंकि ये कमबख्त इसकी एनर्जी को जाया कर रही है, यानी इसमें वो एनर्जी जो भी ये बेचारा किसी, हाँ नहीं, किसी भी एक को ना ले, आइडियल ये है कि जो सेम डायरेक्शन में उनको पॉजिटिव लें और ऑपोजिट वाले को नेगेटिव लें, ताकि आपको पता रहे कि पॉजिटिव का मतलब आपने वर्क किया, नेगेटिव का मतलब इसने वर्क लूज किया। अच्छा तुम लोग, अच्छा आप एक चीज समझना, मैं सर तुम्हें एक, मैंने आपसे कहा ना कि यार अगर अभी मैं सिर्फ वर्क एनर्जी पावर का सिलेबस पढ़ाने बैठ जाऊं तो वो तो 1 घंटे में टॉपिक खत्म हो जाएगा। आज 1 घंटे में हम सिर्फ वर्क कंप्लीट कर लेंगे, बड़ी बात होगी, सही है, बट इंशाल्लाह हमें जब समझ आ जाएगा ना, मैं आपके आगे ना कंटिन्यूअसली सिचुएशंस डिस्कस करूंगा एक एक करके, ठीक है ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, सब समझ आ जाएगा, बस सिर्फ सबने मुझे गौर से देखना है। एक चीज हमने पढ़ लिया है कि इफ यू रियली वांट टू डू वर्क, देयर शुड बी सम फोर्स, there should be some displacement, and there should be some displacement in the direction of the force, ठीक है? अच्छा, you know, when I was at your age and I was taught work energy power, तो मैं क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेता था, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आता था कि यार एकदम से एक चीज पॉजिटिव हो गई, एकदम से एक चीज नेगेटिव हो गई, एकदम से यहाँ वर्क हो रहा है, यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा। तो आपको जो मैंने 2-3 किताबें रेकमेंड की हैं, उसमें एक बड़ा खूबसूरत
मुझे डिस्क्रिप्शन मिला जिसमें ना उन्होंने एग्जाम्पल्स दी डूइंग वर्क एंड, ताकि ना एक अच्छा आपको क्लियर मिलेगा कहां पे वर्क हो रहा है और कहां पे वर्क नहीं हो रहा है। सबसे पहली चीज what we need to understand is कि doing work is a way of transferring energy। देखिए, right from the day we were born we have been listening one thing, the law of conservation of energy। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कोई माई का लाल एनर्जी को पैदा नहीं कर सकता, एनर्जी को फना नहीं कर सकता। बिल्कुल एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, बट एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो सकती है। वर्क असल में यही है। वर्क इज नॉट समथिंग आउट ऑफ द वे। वर्क इज सिंपली कि किसी सिचुएशन में जब एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो रही होती है ना, वी कॉल दिस प्रोसेस एज वर्क डन। और ये उसी वक्त होगा जब कोई फोर्स होगी और कोई डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स की डायरेक्शन में। तो अब हम एक एग्जांपल, वन बाय वन एग्जांपल देखेंगे, उसको हम फॉर्मूला और लॉजिकल दोनों तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पुशिंग अ कार to start it moving, your force transfers energy to the car, the car's kinetic energy increases। बहुत डेफिनेट सी बात है यार, एक सुकून से खड़ी हुई गाड़ी थी, आपने उस पर धक्का लगाया, you exerted a force on it and it covers some displacement in the direction of the force, कार मूव करना शुरू हो गई, कार्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, डेफिनेट वर्क डन है। फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, आपने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की, कार के पास वो एनर्जी आ गई और कार मूव करना शुरू हो गई। क्लासिकल एग्जांपल ऑफ वर्क। But at the same time, let's look at an example where you are pushing a car but it does not budge. No energy is transferred because your force does not move it। देखो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, नजर आ रहा है? अब तो नजर आ रहा होगा ना? सही है ना? मैं इसमें दबा के फोर्स लगा रहा हूँ, दबा के फोर्स तो बहुत है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, ये ऑब्जेक्ट छोड़ जाके दीवार में दबा के फोर्स लगा रहा हूँ, तो खूब फोर्स लगा रहा हूँ, बट it's not moving, so I have a force but I do not have a displacement। So no matter how big the force is, if there is no displacement there is no work done। आप अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसफर नहीं कर सके तो इस केस में वर्क नहीं होगा। Despite there is a force but there is no displacement। यहां तक सारे मेरे साथ हैं? There is no transfer of energy। उसूलन एक सवाल है जो आप सबको पूछना चाहिए मुझसे इस वक्त। वो सवाल ये कि सर देखिए, अगर आप, तो मैं डोरा द एक्सप्लोरर हूं ना, सवाल भी खुद ही पूछता हूँ, जवाब भी खुद ही देता हूँ। देखो सवाल उसूली तौर पे ये होना चाहिए आपका कि सर आप फोर्स लगा रहे हो, चलो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है, आप ये तो समझ में आता है, इसने डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर किया, लेकिन सर आप तो थक जाओगे ना, आप अभी सर पाशा को लगा दो 2 मिनट, सर पाशा फोर्स लगाए जा रहे, थोड़ी देर बाद पड़े हुए होंगे सर पाशा जमीन पे, सही है, तो सर पाशा की तो सारी एनर्जी गई, तो कम वक्त गई कहाँ? एनर्जी ट्रांसफर तो हो रहा नहीं है, वो तो गेन कर रहा नहीं। उसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन ये है कि देखें, एनर्जी दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर नहीं हुई, बट हुआ ये कि जब आपकी बॉडी को इस तरह की अनयूजुअल हरकत करती है, यानी कंटिन्यूअसली धक्का लगा रही है, फोर्स लगा रही है, जिसमें आपकी बॉडी में बहरहाल अच्छी खासी मूवमेंट हो रही है, उससे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है।
जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है ना, यानी अनयूजुअल होती है, वैसे ही ब्लड तो सर्कुलेट कर ही रहा होता है बट थोड़ी सी अनयूजुअल हो जाती है। तो जो ब्लड है ना, जब वो आर्टरीज या वेन्स जहां से भी गुजरता है, तो वो उनके सरफेस से फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, जिससे हीटिंग प्रोड्यूस होती है। आपके अंदर एक यू स्टार्ट लूजिंग योर एनर्जी। तो एनर्जी बहरहाल कन्वर्ट हो रही है आपकी बॉडी के अंदर ही, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एंड यू आर लूजिंग द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इनसाइड योर बॉडी। लेकिन एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर नहीं हो रही है। यानी जो आपके सामने कार था या जो भी ऑब्जेक्ट था ना, जिसको आप पुश कर रहे थे, उसमें एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो आई वुड से दिस इज डेफिनेट वर्क डन एंड दिस इज not doing work done, because कार में तो किसी किस्म का वर्क नहीं हुआ, because the car has not moved। जी लेकिन वापस मैं भी नहीं मूव कर रहा ना, वापस मैं भी नहीं मूव कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको आसान कर देता हूँ, एक एक ऑब्जेक्ट सरफेस पे पड़ा हुआ है सिंपली, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, कॉन्टैक्ट फोर्स, और वो आप पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा है, लेकिन मूव कोई भी नहीं कर रहा ना, वर्क डन दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा। मैं भी तो नहीं मूव कर रहा ना, नहीं, जो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, अनलेस के हाँ मैं टकरा के वापस आ जाऊं तो वो एक अलग चीज। आप समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट का मूव करना जरूरी है फोर्स के साथ साथ। जी हम ना, आई जस्ट टर्न ऑन योर माइक। अब सर मुझे आपसे एक बात कंफर्म करनी है, जब एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लग रही है, तो उसके ऊपर जो अपोजिंग फोर्स होगी वो उसकी इक्वल होगी, और फिर डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग सेम लेंगे, तो फिर टोटल वर्क डन, क्योंकि वो माइनस हो जाएंगे, कि हमेशा एक सिस्टम का जीरो होगा, नहीं नहीं तो वो नहीं, एनर्जी। जरूरी नहीं, मैंने इत्तेफाक से एग्जांपल ऐसी दी थी, अभी मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, वहां पे ऐसा नहीं होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा अपोजिंग फोर्स सेम हो अप्लाइड फोर्स के। अच्छा सर, वर्क डन शुड बी पॉजिटिव एंड व्हिच कैंसिल आउट। सर अगर नॉन लिविंग थिंग्स फोर्स लगा, नॉन लिविंग थिंग खुद से फोर्स नहीं लगा सकती है, नॉन लिविंग थिंग को पीछे से कोई कोई ना कोई तो पुश करेगा ना, या उसके अंदर कोई, जैसे गाड़ी है, गाड़ी नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन गाड़ी के अंदर एक पूरा मैकेनिज्म आपने बनाया हुआ है ना, कि आपने उसके अंदर इंजन बनाया हुआ है, उसके अंदर आप फ्यूल कंज्यूम कर रहे होते हैं। नॉन लिविंग थिंग बैठे बैठे फोर्स लगा भाग जाना वहां से, क्योंकि क्योंकि भाई कोई सीन है, समझ रहे हो, बिकॉज हाँ मेरी एनर्जी लॉस में चली गई, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। चलो एक अभी जरा एग्जांपल्स को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, हमें काफी सारी एग्जांपल्स डिस्कस करनी है। लिफ्टिंग वेट्स, यू आर यू आर डूइंग वर्क as the mass gains potential energy. Holding weights above your head, you are not doing work on the weights। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेट्स से यार ये मेरा फोन है ना, लेट्स अज्यूम दिस इज अ वेट, ठीक है ना, जब तक मैं इसको लिफ्ट कर रहा हूँ ना, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, और ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डेफिनेट वर्क डन है, ऊपर जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, देयर इज अ फोर्स, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। लेकिन जैसे ही ये मेरे सर पे ले आके मैंने रुक रुक गया ना, अब ये मूव नहीं, हालांकि फोर्स तो मैं अभी भी लगा रहा हूँ ना, क्योंकि वेट तो डाउनवर्ड ही है, मैंने इसको कोई ना कोई फोर्स लगा के रोका हुआ है, बट बिकॉज नाउ इट्स नॉट मूविंग, तो देयर इज नो वर्क डन। समझ रहे हो ना, हाँ वही वाली बात है, किसी बंदे को ऐसे करके छोड़ दो, 1 घंटे बाद थक जाएगा, उसके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, वो एनर्जी लूज करना शुरू हो जाएगा, उसका मैकेनिज्म वही है, फिर बॉडी में कुछ भी अनयूजुअल होगा, किसी इंसान को ऐसे करके खड़ा कर दोगे तो जाहिर है बेचारे को थकान तो शुरू हो जाएगी, बॉडी एनर्जी लूज करना शुरू कर देगी, बट एक्चुअली इस सिस्टम में कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बिकॉज फोर्स तो लग रही है, देखो फोर्स तो मैंने लगाई भी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हाँ जब तक मैं इसको ऊपर लेके जा रहा था वर्क हो रहा था, जैसे ही मैं रुक गया ना, अब फोर्स तो है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो देयर इज नो वर्क डन। तीसरी एग्जांपल इज माय पर्सनल फेवरेट एंड दिस विल रिक्वायर योर कंसंट्रेशन। डूइंग वर्क तो आसान है, a stone following the force of gravity is doing work, the stone's kinetic energy is increasing। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी स्टोन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप करते हो, तो उसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही थी ना वेट, और वो उसने उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव किया, तो देयर इज फोर्स एंड देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स,
डेफिनेट वर्क डन है। नीचे आते हुए उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है, ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रहा है। बट द मून इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, the force of gravity is not doing work, the moon's kinetic energy is not changing. Now this is an extremely important example to understand कि जब कोई मास किसी प्लैनेट के अराउंड घूम रहा होता है ना, कोई उसका सैटेलाइट है, जैसे अर्थ का सैटेलाइट मून है, तो या अर्थ सन के अराउंड घूम रहा होता है, तो कोई वर्डन नहीं हो रहा होता। देखिए वैसे तो हमने बचपन से सुना है कि दुनिया में रहने वाले चांद के दीवाने हैं, हकीकत में तो चांद हमारा दीवाना है जो हमारे गिर्द 24 घंटे घूम रहा होता है। सही है। So let's talk about a situation where azan हुई। The earth is revolving around the sun, और इसको सर्कुलर पाथ में टिके रहते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ मेंटेन करने के लिए ना एक फोर्स चाहिए होती है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर उस पर एक्ट करे, रिजल्टेंट फोर्स वी कॉल एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। शायद तुमने वो लेवल से पढ़ा हो, इसका बहुत डिटेल्ड वर्जन इंशाल्लाह मेरे लेवल A2 में पढ़ेंगे, आप परेशान ना हो। बट शायद इतना आप सबने पढ़ा होगा कि भाई सर्कुलर पाथ मेंटेन करने के लिए यू नीड अ फोर्स दैट मस्ट एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, वी कॉल दिस फोर्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सिचुएशन में इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, वो जो अर्थ पे एक्ट कर रही होती है, दैट सर्व्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है कंटिन्यूसली टुवर्ड्स द सेंटर, वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, आप कंटिन्यूसली मूव भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप गौर से देखो ना, जरा वेलोसिटी चेक करना। एक ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है ना, वो टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ होती है। ऐसा ही है ना, सर्कुलर पाथ पे टेंजेंट बना दो। एट ऑल पॉइंट्स अगर आप गौर से देखें तो फोर्स और वेलोसिटी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और याद रखिएगा, जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो या डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, तो वर्क डन नहीं होता। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिकल एग्जांपल जहां पे आपके पास फोर्स भी है। यानी अब तक मैंने आपसे जितनी एग्जांपल डिस्कस की थी उसमें या तो फोर्स नहीं या तो डिस्प्लेसमेंट नहीं, जिसकी वजह से वर्क डन नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो फोर्स भी है, ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है, लेकिन वर्क डन नहीं है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के क्या बिल्कुल परपेंडिकुलर है। एक परपेंडिकुलर फोर्स सिवाय दिशा बदलने के, सिवाय डायरेक्शन चेंज करने की और कुछ भी नहीं करता। वो क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा। परपेंडिकुलर है ना, ऑब्जेक्ट यूं जा रहा है, आपने फोर्स यूं लगाई, वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। ये कंटिन्यूस डायरेक्शन चेंज करते करते ना ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमा देता है। लेकिन ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ना उसकी स्पीड बढ़ रही है, ना कम हो रही है, ना वो करीब आ रहा है अर्थ से, ना वो अर्थ से दूर जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो। दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जहां पे आप कह सकते हैं कि फोर्स भी है, मूवमेंट भी है, लेकिन वर्क डन नहीं है, बिकॉज फोर्स एंड वेलोसिटी आर कंटिन्यूसली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। The work done due to the gravitational force is zero as the force is acting perpendicular to the direction of motion. अभी हम assume कर रहे हैं वो isolated masses के इस यूनिवर्स में दोनों के अलावा कोई दूसरा मास नहीं है, वो बाकी मासेस के भी फोर्सेस है ना। मेरा चांद किसी और के अराउंड घूमता है, अबे भाई सही है, सही है। तो हाँ देखो, मैं सकीना और मोहम्मद, सकीला और मोहम्मद बेहद, देखो स्पीचलेस ब्रो, स्पीचलेस। देखिए एक और मैं ये बता रहा हूँ, सकीना एंड मोहम्मद बेहद, जरा एक बार दोबारा सुन ले कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर, जैसे अर्थ जब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा था ना सन के अराउंड, तो उसको एक फोर्स एक्ट कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ओके, वो फोर्स बड़ी नेसेसरी होती है ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रोकने के लिए। इन दिस केस इट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज प्रोवाइडिंग दैट सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जो वेलोसिटी होती है ना, वो टेंजेंट बनती है। टेंजेंट समझते हो ना,
जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। अगर आप हर पॉइंट पे देखो तो वेलोसिटी ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर है। ये बात आपको समझ में आ रही है सकीना एंड मेहद? और जब फोर्स और मूवमेंट, फोर्स और मोशन परपेंडिकुलर हो, या आपकी फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो, क्या वर्क डन हो सकता है? वर्क डन जीरो होगा ना, बिकॉज द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो दिस इज एन एग्जांपल जहां पर फोर्स एक्ट कर रही है, ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है, लेकिन वर्क डन क्या है? वर्क डन क्या है? जीरो, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। हाँ, इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स होती है मिकाइल। ठीक है। अच्छा, अभी अभी मेरे को तुम लोग से बहुत सारी बातें करनी है, सही है? अब देखो, एक मास है जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है, और वो सरफेस है स्मूथ। स्मूथ मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है? आपने उस पर फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, और वो डिस्प्लेस कर गया 25 मीटर, सही है? मैं आपसे कहूं वर्क डन निकाल दो, वेरी इजी। फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, 10 इंटू 25, 250 न्यूटन मीटर्स, 250 जूल्स। इंपॉर्टेंट ये कि इस 250 जूल्स का मतलब क्या है? इस 250 जूल्स का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट पर 250 जूल्स की, देखो आपने फोर्स लगाई, फोर्स से एक्सेलरेशन आएगी क्योंकि कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है। एक्सेलरेशन की वजह से उसकी स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। 250 जूल्स का मतलब 250 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी का गेन आ जाएगा इस ऑब्जेक्ट में। यानी आप जब 25 मीटर बाद देखोगे ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई होगी। और कितना इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी का? जितना आपने बर्डन किया 250 joules, so there is an increase of 250 joules of काइनेटिक एनर्जी। आसान था ये, सबसे पहले आसान एग्जांपल है। दो तीन ना बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन से समझ लो, वर्क का कॉन्सेप्ट बड़ा खुल जाएगा तुम लोगों का। बिल्कुल, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन जीरो होता है। जल्दी से एवरीवन जस्ट राइट ऑल क्लियर ऑन चैट, अगर आपको ये वाली बात समझ में आती है, फिर मैं थोड़ी सी बेहतर एग्जांपल लेकर आता हूं। जल्दी एवरीवन प्लीज राइट ऑल क्लियर, क्विक क्विक क्विक। थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, जल्दी से हमें एक चीज डिस्कस करनी है। चलो भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन देखो, बहुत गौर से सुनना है। ये सब पास्ट पेपर के केसेस हैं जो बड़े खामोशी से पूछ लेते हैं वो, और बच्चे बहुत परेशान होते हैं कॉन्सेप्चुअली। देखिए, एक सरफेस है, फुल ऑन स्मूथ सरफेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है, और मास मस्त कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। और वो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। और ये 100 मीटर मूव कर गया, सही है? मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं, अ बॉक्स मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर्स पर सेकंड ऑन अ स्मूथ सरफेस। कोई मुझे वर्क डन बता सकता है कितना है? वर्क डन कितना है? अबे पगलोड, ये फोर्स नहीं दी हुई है जो मल्टीप्लाई कर दिया इसको। वेलोसिटी है 25 मीटर्स पर सेकंड, कांस्टेंट वेलोसिटी है। मेरे ख्याल से यहाँ पे वर्क डन जीरो है। देखें, सरफेस सरफेस दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल जहां पे डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन फोर्स, देखो एक स्मूथ सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है बिना किसी फोर्स के। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है ना भाई, एन ऑब्जेक्ट रेस्ट टू लिव इन एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यूअस मोशन। फ्रिक्शन है नहीं इसका मतलब, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब फॉरवर्ड फोर्स नहीं होगी, क्योंकि अगर फॉरवर्ड फोर्स होती तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से थोड़ी मूव करता, ये तो एक्सीलरेट कर जाता। अगर फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, इसका मतलब कोई फॉरवर्ड फोर्स भी नहीं है। बस किसी ने धक्का देके एक बार छोड़ दिया होगा तो वो जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। अब वो 100 मीटर क्या 1000 मीटर चला जाए, वर्क डन नहीं है। ना काइनेटिक एनर्जी का गेन है, ना पोटेंशियल एनर्जी का गेन है, ना कोई फोर्स है, ना कोई डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट तो है, कोई फोर्स नहीं है। फोर्स जीरो, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द मास। हाँ, स्मूथ सरफेस नहीं होगी तब तो डेफिनेटली आपको फोर्स चाहिए होगी। अभी मैं एग्जांपल देता हूं।
सारे मेरे साथ हैं। काइनेटिक एनर्जी का वर्क डन से ये रिलेशन है कि जब आप किसी चीज को पर वर्क करते हो ना, तो किसी को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसकी या तो काइनेटिक एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो बढ़े ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना। पिछले एग्जांपल यही तो थी, फोर्स लग रही थी, एक्सेलरेट कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ। यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, कोई फोर्स नहीं है, तो फोर्स नहीं तो वर्क डन भी नहीं। अभी यार सारे सिचुएशन पे आएंगे, सारी सिचुएशन पे आएंगे। अब एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट अभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट अभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है, लेकिन अब फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है। वही वाली एग्जांपल, कार वाली एग्जांपल, आपने कंटिन्यूअसली 100 न्यूटन की फोर्स लगाई हुई है और ये 50 मीटर मूव कर जाता है। थोड़ी देर पहले भी अभी हमने ये एग्जांपल डिस्कस किया था, अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ रफ सरफेस, फ्रिक्शन 100 न्यूटन और आपकी अप्लाइड फोर्स भी 100 न्यूटन। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स जो आप पुश कर रहे हो 100 into 50, 5000 joules. Work done by the body, वो जो फ्रिक्शन फोर्स है स्मॉल एफ, -5000 जूल्स। अभी भी काइनेटिक एनर्जी में कोई इंक्रीज नहीं आएगा, बट फर्क है, पिछले केस से भी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज नहीं आ रहा था, बट इस केस में वर्क हुआ है। वो अलग बात है कि आपने 5000 जूल का वर्क किया और पूरे 5000 जूल का वर्क क्या हो गया, जाया हो गया। तो 5000 जूल्स गेन बाय द बॉक्स, बॉक्स से पहले 5000 जूल गेन किया और फिर 5000 को लूज भी कर दिया, समझ रहे हो। देखो ये दो सिचुएशन, दोनों में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही, यहां पे भी नहीं हो रही है और यहां पे भी नहीं हो रही, लेकिन इन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। वहां पर कोई फोर्स ही नहीं थी, वर्क हुआ ही नहीं था, यहाँ पे सर वर्क हुआ है, फिर उतना ही वर्क जाया भी हो गया है। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे भी नहीं है, वहां पे भी नहीं है, लेकिन दोनों में फर्क है। सही है। हाँ मिकाइल, बिल्कुल पुराने वाले में यही एक्सप्लेनेशन आएगी। अच्छा अब मुझे, अब एक और सिचुएशन समझ लो, हमारे पास 5-6 मिनट ही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है एक दो एग्जाम्पल्स को डिस्कस करना। अब वही हमना वाली बात कि सर क्या हमेशा ऐसा होगा फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर होगा, नहीं नहीं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शन 70 न्यूटन की, अभी भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है। अब लेट्स से 200 मीटर 200 मीटर टू द राइट ये मूव कर गया, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 100 into 200, 20,000 जूल, 20,000 जूल्स। अच्छा, वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना, 200 है, तो -70 to 200 इज -14,000। काइनेटिक एनर्जी का गेन कितना आएगा, 6,000। अब देखो काइनेटिक एनर्जी तो 6,000 बढ़ी है, बट आप ये थोड़ी बोलोगे कि वर्क डन पे 6,000 था। अबे भाई वर्क डन तो 20,000 जूल का हुआ था, फिर उसमें से उसने 14,000 हीट में लॉस कर दिया इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, और बाकी 6,000 मस्त अभी भी उस ऑब्जेक्ट के पास है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ चुकी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है। क्या यहां तक आप सारे मेरे साथ हैं? अच्छा अब मैं आपके आगे दो सिचुएशंस बना रहा हूं और आपको मुझे सिर्फ आंसर देना पड़ेगा यस या नो में, ठीक है। उसके बाद दो एमसीक्यूज कराने, बड़े इंपॉर्टेंट है, सारी डिस्कशन का कंक्लूजन है वो दो एमसीक्यूज। तो हो सकता है हम 5-10 मिनट ऊपर चले जाए, बट इट्स इंपॉर्टेंट। देखो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, if there is no friction, सिर्फ आंसर मीन यस और नो, can this body move 10 meters with a constant velocity without any work done? फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, क्या ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर मूव कर सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बिना किसी वर्क के?
The answer is a dead yes, no? अबे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कोई फोर्स नहीं है ना, फ्रिक्शन भी नहीं है, तो मैं अप्लाई करने, एक ऑब्जेक्ट स्मूथ सरफेस पे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्यों नहीं मूव कर सकता है? एन ऑब्जेक्ट कैन फॉर श्योर मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, एक्सेलरेट नहीं कर सकता, उसके लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी तो अभी तुमने पीछे डिस्कस किया ना, स्मूथ सरफेस पे ऑब्जेक्ट मस्ट मूव कर रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। मोहम्मद, आपको समझ आ रही है बात? रिजल्टेंट फोर्स 0 है, फिर पीछे बैकवर्ड फोर्स है नहीं, कोई फ्रिक्शन, तो फॉरवर्ड फोर्स भी नहीं होगी। अच्छा, can this body move up by 10 meters with a constant velocity without doing work? इस सिचुएशन में क्या ये बिना वर्क किए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही 10 मीटर खुद से ऊपर जा सकता है? यस या नो? अगर ये जाएगा तो आप भाग जाना वहां से, मैं पहले बता दे, सही है? अगर ये खुद से ऊपर जा रहा है, कोई और है जो आपके साथ रह रहा है, सही है, जो आपको नजर नहीं आ रहा है। देखिए, आंसर इज अ डेड नो, क्योंकि देखिए, और इसकी बड़ी रैशनल एक्सप्लेनेशन है। अगर लेट से 20 न्यूटन का इसका वेट है ना, अगर तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कराना चाह रहे हो ना, तो तुम्हें कम से कम रिजल्टेंट फोर्स 0 तो करनी पड़ेगी ना। कम से कम 20 न्यूटन की अपवर्ड फोर्स तो चाहिए ही चाहिए ना। तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, तुम ऊपर जाओगे, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली मूव करा सकते हो बिना किसी वर्क डन के, अगर स्मूथ सरफेस है। यहाँ पे भले फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं, लेकिन वेट तो है ना, उसको तो ओवरकम करना पड़ेगा ना, आपको एक अपवर्ड फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि आप उसको ऊपर लेके जा सके। अच्छा, अब दो छोटे छोटे एमसीक्यूज है जिनका आपने मुझे बहुत तमीज से समझ के आंसर देना है। रोनाल्डो क्या बोलता है? दिस इज, देखो मेरी बात सुनो, सबने आंसर दिया ना। अब देखो, तुम लोगों को अंदाजा नहीं है, जो मैंने पिछला 1 घंटा तुम लोगों का दिमाग पकाया है ना, तो तुमने इतने मजे से, मैंने हर साल ना, पहले ये एमसीक्यू जब भी मैं कराता था ना, सिर्फ वर्क का फॉर्मूला पढ़ाने के बाद क्लास में हर बच्चा ए भी बोलता था, कुछ ना कुछ डी बोलते थे, कुछ बी बोलते थे, कुछ सी बोलते थे, क्योंकि देखो, इट्स नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड कि एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। देखो, जो स्मूथ सरफेस है ना, दैट्स द किलर। स्मूथ, दैट इज वेयर यू कैन लॉक योर आंसर के सी। अगर स्मूथ सरफेस है ना और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब कोई आर्गुमेंट ही नहीं है। इसका मतलब फॉर श्योर कोई फॉरवर्ड फोर्स नहीं, वरना अगर कोई फोर्स होती तो क्या होता? कद्दू ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर जाता, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव ही नहीं करता। तो यस, ऑप्शन सी इज द ऑप्शन जहां पे वर्क डन। ये पता है, 2-3 सालों में ऐसे 1 मार्क का एमसीक्यू पूछते हैं जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपका असेस हो जाएगा। अच्छा, अब ए पर आते हैं, द एयर इन द बाईसाइकिल। देखो, जब भी कोई टायर फटता है ना, या कोई गुब्बारा फटता है, तो एयर क्या होती है? एयर एक्सपैंड होती है। तो एयर एटमॉस्फेयर को क्या करती है? पुश करती है। क्या करती है? पुश करती है एयर एटमॉस्फेयर को। तो फोर्स भी लगाती है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर करती है, तो बिल्कुल वर्क होता है। बॉल को जब आप ड्रॉप करते हो टू द ग्राउंड, डेफिनेट वर्क डन है, नीचे फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट है। क्रेन किसी मास को लिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ कांस्टेंट स्पीड से, ये भी वर्क डन है। हालांकि कांस्टेंट स्पीड से ही कर रहा है, लेकिन बिना फोर्स लगाए आप उठा ही नहीं सकते हो, तो फॉर श्योर वर्क डन है। तो द ओनली करेक्ट आंसर इज 2। अच्छा, लास्ट वन और फिर छुट्टी, जल्दी जल्दी। अगर सरफेस रफ होता ना, तब वर्क डन 0 हो ही नहीं सकता था, फिर आपको फॉरवर्ड फोर्स चाहिए होती। तो फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वर्क डन 0 कैसे होगा?
बहुत आसान, वेरी इजी पीजी लेमन फ्रीजी। बिल्कुल, ये कह रहा है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट देखना आपने। ए ए ए ए वर्क इज डन बाय द, ये कितनी छिचोरी बात की है इसने। आप देखो, वर्क इज डन बाय द गर्ल अगेंस्ट द ग्रेविटी। अबे नीचे गिर रही है वो, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे जा रही है? अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे, तो वो भी तो नीचे ही जा रही है ना, आप समझ रहे हो? तो जितनों ने भी ए आंसर दिया है बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे बी, एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है तो फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क डन तो है ना। सही है, सारे मेरे साथ है। तो इस अपनेपन के साथ कि अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।